Hello students, our next chapter is government budget and the economy. Students, see in our world, in our modern world we say everywhere government is trying to maximize the welfare of our country. How it is trying to maximize? For that it requires a number of infrastructural government के लिए को हमारी कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमाइज करने के लिए व्हाट इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ infrastructural, economic and welfare activities. So all these activities require huge expenditure to be incurred. Government needs a lot of money to be incurred on these expenditure. So this will require appropriate planning for making all this expenditure. Definitely the government will require what? Appropriate planning and the policy of the government. Okay, so government has to make some planning and policy to do all this expenditure. So the solution to all the problem is what? Making a budget. When the government plans something or when the government tries to bring some new policy, that all things comes under the solution of all the problems. So this solution of all the problems is known as budget. What is budget? Actually, budget is a document. It is a document containing detailed programs. It contains what? It contains detailed programs and policies of action for the given fiscal year. Now I will tell you students what is the meaning of fiscal year. You must be thinking, ma'am, what is this fiscal year? See students, in our today's video we are going to see what? First we are going to see the meaning of government budget. Today first we will see the meaning of government budget. Then we will see why this government budget is made, when it is made, and what are the benefits of this government budget. Now I told you what is the meaning of budget and why the government needs to make this. Now let's understand in detail. First students, let us start our video by understanding the meaning. See, meaning is what? Government budget is an annual statement showing आइटम वाइज एस्टिमेट्स. मतलब गवर्नमेंट बजट क्या है? ये एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें आइटम वाइज एस्टिमेट्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड एस्टिमेट्स है. What? It shows item wise estimates of receipt and payments during a fiscal year. इसका मतलब ये एक एनुअल स्टेटमेंट है जहाँ पर आइटम वाइज एस्टिमेट्स है. एस्टिमेट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये सब एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती है कि गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि इस फिस्कल ईयर में हम लोग इतना सेक्टर में इतना खर्चा करेंगे या कौन से सेक्टर में कितना अमाउंट ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट? एस्टिमेट्स. Estimates means these are not the actual figures, they are just the estimated value you can say in the coming year, in the coming fiscal year. मतलब कितना पैसा कौन से सेक्टर में जाना है. ठीक है. Now students, you must be wondering what is the meaning of fiscal year. Fiscal year students is taken from 1st April to 31st March. Yes, 1st April to 31st March is considered as a fiscal year. Okay, so in this government budget यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, कहाँ से उनको और इनकम हो सकती है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन. नो, इट इज़ शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स. रिसीट्स एंड पेमेंट मतलब कहाँ से उनको पैसा मिलने वाला है. गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गेट मोर मनी फ्रॉम विच सेक्टर, एंड पेमेंट्स मीन्स वेयर द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक मोर पेमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. एस्टिमेट्स है ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती है जो गवर्नमेंट सोचती है कि हम लोग इतना अमाउंट इस सेक्टर में स्पेंड कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, इन द अपकमिंग ईयर. सो आने वाले साल में कौन कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को निकालनी होती है, क्या टैक्स स्ट्रक्चर होगा. ओके, ये सब गवर्नमेंट में बजट में आता है ना. बजट तो तुम लोग सुने होंगे कि व्हाट डज गवर्नमेंट शो इन द बजट, कि विच ऑल पॉलिसीज आर गोइंग टू कम इन दिस ईयर, देन व्हाट विल बी द टैक्स स्ट्रक्चर, देन रेलवेज़ में गवर्नमेंट क्या क्या चेंज करने वाली है. इन द सेंस रेलवेज़ में कौन से चेंजेस आएंगे, दैट इज़ रेलवेज़ में कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ से गवर्नमेंट को कितना अर्निंग होने वाला है रेलवेज़ में, ये भी बजट में ही सब गवर्नमेंट शो करती है. ठीक है, और एक्सपेक्टेशन लगाती है. ये नहीं है कि रेलवेज से उसको इतना पैसा मिलेगा ही. गवर्नमेंट ओनली एक्सपेक्ट्स कि यस हम लोग को रेलवेज़ में से इतना अर्निंग्स हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर द एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर. सो गवर्नमेंट बजट इज मेड बाय गवर्नमेंट बाय ऑल द लेवल्स. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
गवर्नमेंट बजट कौन बनाता है? गवर्नमेंट बजट इज मेड बाय गवर्नमेंट बाय ऑल द लेवल्स. ऑल द लेवल्स मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर लोकल गवर्नमेंट. एट ऑल द लेवल्स गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द बजट. बट स्टूडेंट्स, in our class 12th in our macroeconomics we will restrict our study only to central government budget. only to what? सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब हम लोग हमारे क्लास 12th के सिलेबस में सिर्फ बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पढ़ेंगे. एंड स्टूडेंट्स, बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली नोन एज यूनियन बजट. यूनियन बजट आप लोगों ने नाम सुना होगा ना. You might have seen in the TV in the month of February when the budget arrives. You might have seen no union budget, union budget. So central budget को ही हम क्या बोलते हैं? Union budget. And we are not going to study state government budget or local government budget. But here we are studying macroeconomics. So in macroeconomics we have to study only about central government budget. These are the things I thought of informing you. So it is only known as union budget. Now in exam students 1 mark question comes, what is union budget? Union budget क्या होता है? Budget which is made by central government is known as union budget. Simple it is. अब देखो, इंडिया में बजट प्रेजेंट जब होता है पार्लियामेंट में, सी इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे, प्रेसिडेंट में डायरेक्ट. मतलब इंडिया में बजट जो है पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट. ओके, सो इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट डायरेक्ट. मतलब बजट तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, बट प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है कि कौन से दिन बजट पेश करना है. इट इज़ डिसाइडेड बाय whom? इट इज़ डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट. ओके, बाय कन्वेंशन इट इज़ प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी. जनरली तो क्या है? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी. मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 28 फरवरी ही हो या 29 फरवरी. इट कैन बी 26 फरवरी ऑल्सो, इट कैन बी 27 ऑल्सो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द हॉलीडेज. लास्ट वर्किंग डे, जो वर्किंग डे होता है उसके उस दिन, फेब्रुवरी का जो लास्ट वर्किंग डे है उस दिन जो है बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है. ये कौन प्रेजेंट करता है? द बजट इज प्रेजेंटेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इन इंडिया द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे दैट प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, प्रेसिडेंट बताता है. अगर प्रेसिडेंट ने बोला है कि 31 मार्च को बजट पार्लियामेंट में लाना है तो वैसा ही होगा. और अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया तो 31 मार्च. बट अगर नहीं बोला बाय चांस प्रेसिडेंट ने, ठीक है, तो बाय कन्वेंशन, दैट इज व्हाई इट इज रिटन बाय कन्वेंशन, इट इज प्रेजेंटेड ऑन दी लास्ट वर्किंग डे ऑफ दी फेब्रुवरी. या तो वो 31 मार्च भी हो सकता है. ठीक है, बट इट इज़ जनरली लास्ट वर्किंग डे ऑफ दी फेब्रुवरी. ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी ऑफ ईच ईयर बाय फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, हु ब्रिंग्स द बजट? Finance minister brings the budget. So the receipt and payments in the budget are not the actual figures, students, but they are the estimated values. Once again I am telling what they are. They are just the estimated values. So the receipt and payments shown in the budget are not the actual figures, but are what? But they are estimated values. For example, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो. जैसे बजट में अगर आ गया कि टैक्स रेट चेंज होना है, सो टैक्स रेट 14 से 14.5% हो गया. सो ऑल दीज देवर टोल्ड. जैसे कई बार क्या होता है ना, सेशन के बीच में हमें न्यूज़ में सुनने मिलता है कि टैक्स रेट इंक्रीज़ हो गया है 14% से 14.5%. बट नो स्टूडेंट्स, नथिंग इज़ बीन डिस्कस्ड इन बिटवीन. हम लोग कई बार सोचते नहीं हैं ये साल के बीच में कैसे आ गया. दे ऑल आर प्रिपेयर्ड इन the budget itself only. So all these were told in the budget, but they are implemented from when? They are implemented from 1st April. बजट में ये सारी चीज़ें पेश हो जाती है, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेशन में लाना है वो कब होता है? वो 1st अप्रैल से ही होता है. सो जो गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, एक और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी लोग गवर्नमेंट बजट को बनाने में इंक्लूडेड होते हैं, whoever people is included in making the government budget, unless and until it is not presented in the parliament, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स देयर कनेक्शंस आर कट ऑफ. मतलब जो भी लोग गवर्नमेंट बजट के प्रिपरेशन में हेल्प होते हैं उनके सारे कनेक्शंस कट ऑफ हो जाते हैं. लाइक दे आर नॉट सेंट होम.
till the budget is presented in the parliament, the people those who are involved in the budget, they are not sent home. Why? Because जो लोग टैक्स बनाते हैं तो उन्हें पता है कि कौन सा टैक्स रेट कितना कम होने वाला है, कितना बढ़ने वाला है. सो अगर उन्हें पता चल जाएगा पहले से ही कि टैक्स इंक्रीज होने वाला है, सो दे मे बाय द कमोडिटीज़ इन एडवांस. सो टू अवॉइड दैट देयर इज़ अ रूल कि द पर्सन्स दोज हु आर इन्वॉल्व इन द बजट, दे आर नॉट सेंट होम, दे ऑल आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर फैमिलीज. ठीक है, दे आर नॉट बीइंग, दे डोंट दे आर नॉट एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट एनीवेयर. उनको फैमिली से अलग कर देते हैं, मीन्स उन्हें घर ही नहीं जाने देते हैं जब तक पार्लियामेंट में बजट नहीं प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स. ओके, सी नाउ स्टूडेंट, बजट, वाई डू वी मेक बजट? नेक्स्ट टॉपिक इज वाई वी आर गोइंग टू मेक बजट. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वी हैव टू स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. सो लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. मीन्स हमें बजट क्यों बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है बजट बनाने की. फर्स्ट रीज़न इज़ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रीअलोकेट करना मीन्स व्हाट, वापस से अलोकेट करना. ठीक है, वंस अगेन टू अलोकेट. सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, बट उस पर रिटर्न गवर्नमेंट को बहुत लेट मिलता है. रिटर्न उनको जल्दी से मिलता नहीं, मतलब प्रॉफिट्स उनको जल्दी नहीं मिलते. जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर गवर्नमेंट को स्कूल कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया या गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, सो ऐसी एक्टिविटी को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी नहीं दे सकती, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस विल नेवर टच दिस गवर्नमेंट एक्टिविटीज़. सो थ्रू गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट हमें बताती है कि इस साल हम हेल्थ केयर पे कितना पैसा लगा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को हम लोग फिर से कैसे एलोकेट करेंगे. ठीक है, हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और एजुकेशन सेक्टर में कितना करना है. ऑल दिस थिंग्स आर डिसाइडेड इन द रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब अपने रिसोर्सेज को फिर से अलोकेट करना जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़. सी द मेन रीज़न, ये कौन सा रीज़न है, ये एक मेन रीज़न है गवर्नमेंट का बजट बनाने के पीछे. जैसे इस रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है, आपका टैक्सेशन आ गया, सब्सिडीज़ आ गई, ये सारी चीज़ें रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती है. ठीक है, सो वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स. हम उनको क्या बोलते हैं, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स. सो थ्रू गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करना है वो गवर्नमेंट इसमें बताती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़ में. जैसे टैक्स को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, या टैक्स को डिक्रीज़ करना है, एलपीजी में सब्सिडी बढ़ानी है या कम करनी है. ऑल दीज थिंग्स आर मेड इन दिस बजट इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़. मतलब अपने एक्टिविटीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, सब्सिडीज़ हो गई, ऑल दिस थिंग्स. सो ऑल दीज आर मेड इन द बजट. फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में. इसका मतलब यही होता है. ठीक है, जैसे टैक्सेशन हो गया, सब्सिडीज़, यही सब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन में. सो ऑल दीज आर टोल्ड इन द गवर्नमेंट बजट. मतलब टैक्स क्यों लगाते हैं, वाई दे चार्ज टैक्स अपॉन अस. ठीक है, वाई, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक वेलफेयर, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक वेल्थ. टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है, ताकि जो कंट्री की इकोनॉमिक वेल्थ है वो स्टेबलाइज हो जाए. उससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ द रिच. उससे क्या होगा, रिच लोगों की इनकम कम हो जाएगी एंड इट विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर. इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. समझ में आया आपको, वाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस टैक्स, टू रेज द, to stabilize the economic wealth of our country. And how the government will stabilize the economic wealth? It will reduce the income of the rich and it will raise the standard of living of the poor. Next is management of public enterprises. See students, public enterprises का मतलब होता है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन. सो ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि गवर्नमेंट की है उनको देखना काम है. वो किसका काम है, गवर्नमेंट का ही काम है. अगर गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस लॉस में जा रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल ट्राई टू स्पेंड सम मनी इन दोज. बट आफ्टर स्पेंडिंग सम मनी ऑल्सो, इफ़ द गवर्नमेंट फील कि इस एंटरप्राइज या फिर इस इंडस्ट्री में, मान लो जैसे गवर्नमेंट की 10 इंडस्ट्रीज़ है, उस 10 इंडस्ट्रीज़ को सारी लॉस में जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेगी. बट आफ्टर स्पेंडिंग सम मनी ऑल्सो गवर्नमेंट फील कि यहाँ पे कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो आइदर द गवर्नमेंट विल शट डाउन दोज इंडस्ट्रीज और इट विल सेल टू द प्राइवेट सेक्टर. सो थ्रू गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट टेल्स कि कौन सी इंडस्ट्री को वो क्या करने वाली है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सी
स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. दिस इज व्हाट, दिस इज आवर बिजनेस लाइन. ये क्या है? ये हमारी बिजनेस लाइन है. ठीक है. दिस फेज इज नोन एज व्हाट, बूम पीरियड. बूम पीरियड मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता जा रहा है और खूब अच्छे से लोग हैप्पीली डिमांड कर रहे हैं और दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड. एंड दिस फेज इज नोन एज व्हाट, डिफ्लेशन. व्हाट दिस इज नोन एज डिफ्लेशन, और यू कैन ऑल्सो से रिसेशन पीरियड. ये बिजनेस लाइन है, इसमें ये बूम पीरियड है और ये क्या है, डिफ्लेशन पीरियड और रिसेशन. अब रिसेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है मार्केट में, और बूम पीरियड का मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है. तो इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करना है? जस्ट सी, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जैसे मैंने बताया कि हमारी बिजनेस लाइन होती है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है वो बूम पीरियड होता है, और जहाँ पे डिमांड कम हो गई, जहाँ पे रिसेशन हो गया, वो हमारा कौन सा हो गया, डिफ्लेशन. तो हमारी कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, न्यू पॉलिसीज़ लेके आती है. ठीक है. गवर्नमेंट विल ब्रिंग न्यू पॉलिसीज़ सो टू स्टेबलाइज अवर इकोनॉमी. गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज़ बनाएगी, तो वो पॉलिसीज़ कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड इन दिस पॉइंट, दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड इन द गवर्नमेंट बजट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. Then last one is what, students, economic growth. Now students, this is the important point in our objectives. इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा, यू नो द मीनिंग ऑफ आवर जीडीपी. तो हमारा जीडीपी कितना इंक्रीज़ हो गया, कितना डिक्रीज़ हो गया, या कितना बढ़ना चाहिए नेक्स्ट ईयर में, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जीडीपी कितना होना चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है. All these are discussed in this economic growth. All these are discussed in the government budget in this. So this is the meaning of economic growth. Economic growth मतलब कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, जीडीपी के थ्रू. तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में डिसाइड कर लेती है कि हमारा जीडीपी कितना इंक्रीज़ होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए जीडीपी कितना बढ़ेगा, और उस जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बजट में डिसाइड करती है. ठीक है. तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कितना था लास्ट ईयर, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट बताती है हमें बजट में, और आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में वो जीडीपी हमारा कितना हो सकता है, उसके लिए कौन से प्लान्स और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट में निकाले हैं. ऑल दिस द गवर्नमेंट विल कवर इन द गवर्नमेंट बजट. सो समझ में आ गया सबको. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, टू एलोकेट द रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. So we will stop the video over here students, otherwise it will be very long if I start one more topic. In our next video students, हम लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट बजट को और डिटेल में पढ़ेंगे, रिसीट एंड पेमेंट्स गवर्नमेंट के पास कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.